دیا ہے، اور آپ نے جو سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں، جو لیگل فٹرنٹی کے نمائندے ہیں، آپ نے ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان بہت ہی اہم ایشوز پہ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتے ہیں۔ شروع کرنا چاہوں گا، اس لیے ہر پارٹی نے اپنا جماعت کا بھی بات کی تو میں اپنا جماعت کا بھی بات کروں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوں۔ ہم شہداء کے جماعت سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے خاندان کو شہید کیا ہے۔ ریاست نے ایک ایک کر کے شہید کیا ہے۔ میرا نانا کو پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے۔ میر مرتضی بھٹو صاحب کو میرے والدہ کے حکومت کے دوران کراچی کے سڑکوں پہ قتل کیا گیا ہے۔ شاہ نواز بھٹو صاحب کو عمر 27 کا تھا، زہر پلا کے شہید کیا گیا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو آپ سب جانتے ہو۔ بم دھماکے میں راول پنڈی کے سڑکوں پہ شہید کیا گیا ہے، لیکن ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج آپ کے درمیان ہیں۔ آپ لوگ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے، ان لوگ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں تھے، آپ بھی آج ہمارے درمیان ہیں۔ اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کافر کہنے والے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہنے والے آج شہید ماننے کو تیار ہے۔ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بہت قریبی ساتھی میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، 30 سال کی جدوجہد میں ساتھ دیے ہیں۔ ہم ان کا بھی بہت ہی شکر گزار ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کہتے تھے کہ آپ خاتون ہو، آپ اس ملک کے وزیر اعظم نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ بھی موجود ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کرپٹ کہتے تھے، آج وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید مانتے ہیں۔ ہم آج بھی، ہم سے غلطیاں ہوتے ہیں، ہر کسی کا زندگی میں غلطیاں تو ہوتے ہیں، لیکن فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہ حملے بھی ہوتے ہیں، میڈیا پہ ہمارا کردار کشی ہوتا ہے، ہمارا اپنے کردار کشی کا، ہمارا محروموں کا، ہمارے شہیدوں کا ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں، ہم اپنے منشور پہ قائم ہیں۔ کبھی کبھار ہم کامیاب ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہار جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ضرور ہے۔ محنت میرا پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے سیاسی کارکن نے کیے ہیں، جس سے آج تک جو ٹوٹی پھوٹی اکا دکا جمہوریت رہا ہے، جو چھوٹا تھوڑا سا میڈیا کا آزادی کا سپیس ہے، جو میرے مزدوروں کا، میرے کسانوں کا قانون کاغذی تو صحیح مگر کاغذ پہ موجود ہے، وہ ان قربانیوں کا اور ان جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ آج پاکستان ایک ایسا وقت سے گزر رہا ہے جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مدینہ کے ریاست میں ہیں، مگر مدینہ کے ریاست کا یہ حال ہے کہ پاکستان کے سب سے ایک فیمس موٹر وے پہ اجتماعی زیادتی ہوتی ہے ایک عورت کی، اجتماعی ریپ ہوتی ہے ایک عورت کی ان کے بچوں کے سامنے، جن کا ذمہ داری ہے اس عورت کا تحفظ دلوانا، جس کا ذمہ داری ہے اس ملک کے سارے عورتوں کو وہ یقین دلانا کہ آپ کا تحفظ اس ریاست کا ذمہ داری ہے۔ آپ
आपका राइट टू फील सेफ एंड सिक्योर, टू ट्रैवल एट नाइट विथ योर चिल्ड्रन, वो जिनका जिम्मेदारी है वो रेपिस्ट पे नहीं, विक्टिम पे सवाल उठाते हैं। जो विक्टिम को पे सवाल उठाते हैं उनका दिफा में इस मुल्क के वजीर आजम सामने आ जाते हैं। मदीना का रियासत का ये हाल है कि आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन मुल्क भर में इस वक्त सैलाब मुतासरीन है। मेरा अपना सूबा इस सिंध से 2.5 मिलियन पीपल अफेक्टेड है। उनके घर तबाह है, उनका फसल 1.9 मिलियन एकर्स ऑफ क्रॉप तबाह है। ये सूरत हाल हमारे सूबा में भी है, बलोचिस्तान में भी बारिशों के सैलाब के मुतासरीन मौजूद है। मलकंड डिवीजन का स्वात का इलाकों का पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिश के मुतासरीन मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान का ग़िज़र और शिगर के सैलाब मुतासरीन मौजूद है, मगर हमारा मीडिया चैनल्स में, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। हमारे सियासी जमातों को याद होगा कि 2011 में भी जब बारिश और सैलाब आया था तो रियासत पाकिस्तान और सबसे अहम किरदार उस वक्त वफाक का था, ने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया था। उनको वतन का दिया था, उनको कॉम्पेंसेशन दिया था। आज हमारा सैलाब मुतासरीन लावारिस है, उनको संभालने के लिए, उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हम अपने आप को मदीना के रियासत कहते हैं। हम इस मुल्क के अहम तरीन जब लेजिस्लेशन करने जाते हैं वो हम एक आज़ाद माहौल में नहीं करते। आज तक जो इस नेशनल असेंबली में अहम लेजिस्लेशन हुआ है, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हुआ है, वो रूल्स को अंडरमाइन करके, हमारा आइन को अंडरमाइन करके, हमारा पार्लियामान को बेइख्तियार करके जबरदस्ती से पास करवाए गए हैं। आपको जो मुख्तलिफ राय है, जो दूसरे साइड का राय है, आपको मौका ही नहीं दिया जाता। अगर मैं कल का नेशनल जॉइंट सेशन का एग्जाम्पल आप सबके सामने रखूं, जिसमें हमारा स्पीकर साहब हमारा वोट का रिकाउंट के मुतालबा पे साथ नहीं दे रहा था। हमारा हक है कि हर वोट पे वो हमारा तादाद गिने। अगर हमारा वोट नहीं गिना जाएगा, हमारा आवाज नहीं सुना जाएगा, तो हम जैसे जमातें भी मजबूर होंगे। हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि मदीना के रियासत में बोलने का आज़ादी तो था, यहाँ तो आपका नाम नेयाद हुक्मरानों के पास भी वो आज़ादी नहीं है। आपके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान के लिए ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। हम जहाँ देखते हैं मदीना के रियासत में, तो हम इंसाफ के लिए अदालत की तरफ देखते। इस्लाम ने हमें कानून दिया, इस्लाम ने हमें हक दिया, इस्लाम ने हर शहरी को, हर मुसलमान को, गैर मुस्लिम को हुकूक दिए। इस्लाम ने मर्द को भी और औरत को भी हुकूक दिया। लेकिन हमारा नया पाकिस्तान में हर तबका के हुकूक सलब किए जा रहे हैं, हर तबका का हकूक सलब किया जा रहे हैं। हमारा तो आप आदी हो हमारा कंप्लेंट सुनने का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, हमारे एस्टैब्लिशमेंट का दबाव का। लेकिन अब हम वर्कर है, जैसे हमारा मतीउल्लाह जान साहब यहाँ बैठा है, असद तूर साहब भी नजर से गुजरा था। मालिकान जो हमें धमकी देते थे
جو जमहूरी हुकूमतों को कहते थे कि हम हुकूमतें बनाते हैं और हम हुकूमतें गिराते हैं, वो आज पाबंदियां और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कल जो सिलेक्टेड होते थे, पहले जो एक दूसरा सियासत का आदी थे, वो भी सब मजबूर हो गए हैं कि इनकलाब का नारा उठाना पड़ा, अवाम का नारा उठाना पड़ा, वोट का नारा उठाना पड़ा, इंसाफ का नारा उठाना पड़ा। और आज हमारा बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत सीनियर बार के मेंबर्स, लॉयर्स ने हमें एक जगह पे यूनाइट किए हैं। लेकिन मैंने आप सब के सामने एक कंप्लेंट रखना है, एक शिकवा रखना है। मैंने आपसे पूछना है, चाहे आप मेरा लेफ्ट से बैठे हो या राइट पे बैठे हो, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, सदर आसिफ सरदारी, इफ्तिखार चौधरी के वक्त आजादी अदलिया के मूवमेंट के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इंडिपेंडेंट मौकिफ सामने रखना चाहा, क्या आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकिफ के साथ दिया, या आजाद जुडिशरी के नाम पे हमारा जुडिशरी को भी एक ऑथोरिटेरियन अदारा बनने का ना चाहते हुए साथ दिया? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या धांधली, आमरियत, सिलेक्टेड मीडिया का आजादी, क्या वो सिर्फ और सिर्फ पनामा के बाद शुरू हुआ? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईंट से ईंट पे जाने निकले थे, तो बाकी सब ने हमें क्या कहा कि हम सिर्फ अपना करप्शन बचाने बयानात देते हैं। जब हम अब रोते हैं, कहते हैं कि 18वीं तरमीम NFC अवार्ड निशाने पे हैं, अब हम बहुत खुश हैं कि हमारे साथ बहुत से जमातें भी खड़े हैं, बहुत से आवाजें खड़े हैं। लेकिन एक वक्त था जब हम कहते थे कि ये हमारे साथ किया जा रहा है इसलिए कि हमने 1973 के आईन को बहाल किया 18वीं तरमीम की सूरत में। एक वक्त ऐसा था जब हम कह रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, इस मुल्क का वफाकी जमहूरी लेफ्ट ऑफ सेंटर जमात को, जो इसका नेशनल प्रेजेंस है, इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत जबरदस्ती एक सूबा तक बांधा जा रहा है, तो हमें नहीं सुना गया। हम सारे जमात जो यहां बैठे हैं उनके अपने कंप्लेंट्स हैं और हम सब से गलतियां हुए हैं। लेकिन जो 3 पॉइंट्स पाकिस्तान बार काउंसिल ने हमारे सामने रखे हैं, ये नए पॉइंट्स नहीं हैं। अगर हम कल नहीं तो आज हम इन तीनों पॉइंट्स पे तो मुत्तफिक हो जाए। कुछ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि हम जजेस के अपॉइंटमेंट्स कैसे करेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा जिसमें सारे सूबे की नुमाइंदगी भी होगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे हमने बहुत काम किया था। जो काम रहता है वो जुडिशरी से हमें मौका था, हम करने चाहा, हमें नहीं करने दिया। 19th अमेंडमेंट का जिक्र किया गया। 19th अमेंडमेंट में 100% एग्री करता हूं। जबरदस्ती हमारा पार्लियामेंट से पास करवाया गया और एक इदारा की तरफ से एक साफ धमकी दी गई कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती का बहाली जो हमने 18वीं तरमीम की सूरत में किया था, जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की इस नारा पे कि 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करो।
जिसकी जद्दोजहद में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुआ, जो मेरे पार्टी मुख्तलिफ जमातों के लोग जेल भुगते, एग्जाइल भुगते, ताकि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करें। उसमें एक लाइन की वजह से कि हमने पार्लियामान से, पार्लियामानी मेंबर्स के इनपुट से, लीगल फ्रेटर्निटी के इनपुट से, आपके बार के मेंबर से इनपुट से जजेस का फैसला करना है, उसको उन्होंने एक थ्रेट के तहत से देखा। ना सिर्फ हमारे जुडिशरी के जो मेंबरान है, रिस्पेक्टेबल मेंबरान है, मगर हमारे सियासी जमातों के साथी ने भी इसको शक की निगाह से देखा था और एक धमकी के नतीजे में 19th अमेंडमेंट पास किया गया। और धमकी यह था कि आपका 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, आपका इस्लामी वफाकी पार्लिमानी निजाम जो इस मुल्क को जोड़ता है, उसको हम उड़ा के रख देंगे। अगर कानून साजी जोर और धमकी से किया जाएगा तो उस कानून साजी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, उस पार्लियामान के कोई मुस्तकबिल नहीं है। जैसे हमारा सीनियर सहाफी सुहेल वराइट साहब कहता है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। हमने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का जो ताकत है, जो तरीका है, अवाम ने ये फैसला करना है। अवाम का फोरम पार्लियामान है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फोरम से कि आप अपना रेजोल्यूशन में डालें कि 19th अमेंडमेंट रिपील, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो 18th अमेंडमेंट और हमारे सब का मौकिफ है कि जजेस का तैनाती का जो तरीका है, उसमें अवाम का सबसे ज्यादा रोल होना चाहिए। उसमें जरूर बार काउंसिल का और बार फोरम्स का इनपुट होना चाहिए और ऑब्वियसली जुडिशरी का इनपुट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो आज कल का तरीकाकार है, जब से मैं कितना साल का था, 2 साल का था, मैं ये सिलसिला देख रहा हूं। मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इस मुल्क के अदालतों को उस उम्र से देखा है। इस मुल्क के जो जेल्स है, जो प्रिजन्स है, तब से देखता आ रहा हूं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक हम तो करप्शन केसेस तो भुगत रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी में क्या क्या केसेस नहीं लगाए गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर केस में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बाइज्जत बरी हुई। मगर अफसोस के साथ वो हमारे दरमियान में मौजूद नहीं थी। To see her name being vindicated, the accusations against her being thrown out. आपने अगर ये तरीका अपनाना है और आपने इस मुल्क के हर सियासतदान को दबाव के तहत, डंडा के थ्रू, अदालत के थ्रू चलाना है, तो आप कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन जैसे सुहेल वराइट साहब कहता है, ये कंपनी नहीं चलेगी। आखिर जो आपका एजेंडा आइटम है, जो हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बगैर ना मेरे वकला भाई अपना काम कर सकते हैं, ना हम सियासतदान अपना काम कर सकते हैं, ना हमारे सहाफ़ी दोस्त अपना काम कर सकते हैं, वो है अपना सिविल लिबर्टीज़, अपने इंसानी हकूक़। और इन पे हम सब से एक ही बयान आना चाहिए, एक ही बयानिया आना चाहिए, एक ही मुतालबा आना चाहिए कि सिविल लिबर्टीज़ पे, इंसानी हकूक़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कि मदीना के रियासत में 2020 में
آپ ایک کتاب نہیں چھاپ سکتے ہو, آپ ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے ہو, آپ ایک ممبران پارلیمانی اسمبلی ایک جماعت کا سربراہ ہوتے ہوئے آزادی کے ساتھ انٹرویو نہیں کر سکتے ہو, ورنہ آپ کا انٹرویو کٹ جائے گا. یہ ماڈرن دنیا کا, زندہ قوموں کا طریقہ نہیں ہے. ہم نے, میرا پارٹی نے, میرا خاندان نے اب قربانیاں بہت دی ہیں. اب ہم اپنا خون کا حساب چاہتے ہیں. اس خون سے یہ دستور بنا ہے, اس خون سے یہ دستور بنا ہے, اور ہم نے اس دستور کو بچانا ہے. چاند نشانہ 1973 کا آئین یا 18ویں ترمیم ہو, یا نشانہ NFC ایوارڈ اور صوبے وسائل ہو, یا ہمارا عوام کے انسانی حقوق ہو, پاکستان پیپلز پارٹی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بھی بیٹھے ہیں, ہم ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا ایم ایک ہے, ہمارا خواہش ایک ہے. اب ہم نے اپنا اسٹریٹجی کو ایک کرنا پڑے گا, اپنا طریقہ کار کو ایک کرنا پڑے گا, اور سب مل کے اس جدوجہد کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. اور میں ایک بار پھر اب سب کو بہت شکر گزار ہوں. ساقی صاحب, آپ نے یہ بولنے کا موقع دیا, اور انشاءاللہ تعالی 2-3 دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے APC کو ہوسٹ کرنے کا, اور وہاں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ سارے سیاسی جماعتیں آخرکار ایک پیج پہ آ کے اس ہائیبرڈ رجیم سے حساب مانگنے کو تیار ہوں گے. ہمارا پارلیمان کو پہلے آزاد کرنا پڑے گا, پھر ہم اپنا ملک کو بھی آزاد. اب سب کا شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب.